guys, at Haldiram in sector 47. It is as usual, as noisy as they come. Okay, so I'll probably, this is the last video I'll probably record in a cafe. And I am going to bunk this and start going to a co-working space. So, that aside, let's come to the original topic of defeating a psychopathic stalker. Okay? A very powerful guy who has hold on you. I had discussed this in a video, Inside the Mind of a Psychopath. So this is the number 2 video in that series. Okay? So for this discussion, let's assume that I am the psychopath that has honed on you, a young girl, maybe in her 20s, yeah, and I am very, very powerful. I am the king of the country. I've got the Air Force, I've got the military, I've got the paramilitary, I've got the police force, I've got the intelligence agencies. I have got access to everything. My word is the law. I can do anything, right? No problem. So, what are the things that I'm going to do to you? It may be that I'm attracted towards you and you said no to my invitation and I got hurt. Now I'm going to make your life miserable, or you are a person of interest in my book and I wish to make your life as difficult as possible, as unlivable as possible. So what are the things that I am going to do to you? So I am going to arrange your stalking in such a way that it may not be illegal, but it will be very, very damaging. Okay, so in the sense, for example, I will hire Pheriwala, I will hire lowly laborers, okay, so to follow you, the Pheriwala, Autowala, something like that. I'll hire those kind of people to stalk you, to continuously follow you, start falling out, irritating you. That kind of stuff I'll do first, okay. Apart from that, not only that, there is no low too low for me. जितना घटिया उतना अच्छा, जितना घटिया जितनी नीच हरकत हो उतनी ज़्यादा अच्छी. Not only those, I'm going to hire people, scumbags, who have done nothing positive in their life, to follow you with sticks. Okay, to follow you with sticks and intimidate you. Right? I'm also going to hire maybe the beggar on the street. I'm going to hire the beggars on the street to harass you when you go out for money. And I'm also going to hire those ये अब R-rated वीडियो होने वाला है, ठीक है, शायद इसमें गाली भी बक दूँ मैं, तो मैं उन नामर्दों को भी हायर करूँगा. आई विल पुट इंग्लिश सबटाइटल्स लेटर, जो खुल के आपके पीछे पीछे चलेंगे, लंबे चौड़े होंगे, लेकिन अगर उनको 4 लोग रास्ते में घेर लें तो उनका जो है पैंट गीली हो जाए. उन लोगों को भी हम लगाएंगे काम पर. हम पुलिस को भी लगाएंगे काम पर. भाई हमारे हाथ में पुलिस, तो हम उसको भी छोड़ देंगे. हम पुलिस वालों को भी काम पे लगाएंगे, हम मिलिट्री वालों को भी काम पे लगाएंगे, हम एयरफोर्स को भी काम पे लगाएंगे, हम हर चीज़ को काम पे लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर मी टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. ठीक है, इसमें क्या मेरा फ़ायदा है, उतने रिसोर्सेज हम इसको डिक्टेट करेंगे. और मुझे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हराम का है मेरे पास, मैंने कोई कमाया नहीं है, मेरे मेहनत का नहीं है, तो मैं कितने भी रिसोर्सेज लगा सकता हूँ, डेडिकेट कर सकता हूँ इसमें आपके लिए. और यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ काम हम ऐसे करेंगे जो यहाँ इस वक्त जो पब्लिक फोरम पे बताए नहीं जा सकते हैं. That kind of stuff, it is disgusting that somebody would agree to do that for money. अगर आप उससे कहें कि समीर, ये इस लड़की का तुम्हें पीछा करना है, डंडा लेके चलोगे तुम इसके पीछे, तो मैं कहूँगा निकल साले यहाँ से तू आगे. अपनी कुछ तेरे अंदर शर्म है कि नहीं. लेकिन मज़े की बात है कि जितना बेशर्म, जितना घटिया हरकत हो, इसमें उतना ही अच्छा रहता है. ये पॉलिसी होती है इन लोगों की. खैर, दैट असाइड, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है. आप किसके पास जाओगे? आप जुडिशरी में शिकायत करोगे? मैंने आपकी फैमिली को पहले ही सेट कर दिया था. अगर आप उनसे कहोगे तो वो कहेंगे कि भैया यार तू तो बेवकूफ़ी वाली बातें करिए, तुम अपना मेंटल इलाज कराओ, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? सुसाइड करें? क्या करें? कूद जाएँ ऊपर से, परेशान हो, क्या करें आखिर? और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं. यू मे नॉट नो दैट what kind of stuff I can use on you.
it may be clandestine technology or maybe anything. I have access to everything, so I'm going to use that on you, right? तो अब इस सिचुएशन में आपके पास चारा क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको इसमें? आप 26 साल, एक 26 साल, 25 साल, 24 साल की आप एक लड़की हैं जो, या आप एक लड़के हैं जो आप ये फेस कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप लड़की हैं और ये फेस कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में? क्योंकि सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है? हमारे जो साइकोपैथ्स होते हैं उनके फियर्स नॉर्मल लोगों से, मैंने पिछले बार बताया था, बहुत अलग होते हैं। वो आपके फियर्स पे काम कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर उस पर हाथ साफ कर भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और आ जाएगा उनकी जगह पे पैसे लेकर। ये कलयुग है। कृष्ण जी क्या क्या कहते हैं कि श्री राम, वो कहावत थी ना, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कहीं, कौवा मोती खाएगा। तो ये वही पीरियड चल रहा है इस वक्त, और ये तो शुरू ही हो गया था जब हम तो खैर हिंदू माइथोलॉजी, और उसमें बहुत हमें मज़ा भी आता है और बहुत हम यकीन भी करते हैं कि सब चीज़ें सच हैं। कृष्ण जी ने पहले ही देख लिया था ये कि ये सिचुएशन आएगी, तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जी के डेथ के बाद कलयुग स्टार्ट हो गया था, ठीक है? अब इस सिचुएशन में जहाँ पे आप कंटिन्यूसली हैरेस्ड हैं और कंटिन्यूसली इंटिमिडेटेड हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहला आप काम ये करेंगे कि आप रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है? यू नीड अ बॉडी कैम, और यू नीड ग्लासेस दैट हैव हिडन कैमरा इन देम। आपको जो भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? चाहे वो कितना भी इमटेरियल हो, चाहे कितना भी मतलब हार्ड टू डिटेक्ट हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 बार 3 बार 10 बार एक पैटर्न इमर्ज हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका करना। ये होमवर्क का पीरियड चल रहा है आपका, इसको आप करो जल्दी से, ठीक है? अगर आप नहीं करोगे इसमें तो जब एक्चुअल गेम मतलब ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि हाँ यार ये काश हमने कर लिया हो, तो हो सकता है ये चीज़ सब आपके साथ ना हो रही हो और लड़कियों के साथ भी हो रही हो और लड़कों के साथ भी हो रही हो। और अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सामने आते हैं, और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सामने आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कोलैबोरेट हो जाएंगी, ठीक है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आप इतने हेल्पलेस नहीं हैं जितने आप अपने आप को आपने बना लिया है, आप समझ रहे हैं, ठीक है? एक अगर खूबसूरत लड़की से कोई बदतमीज़ी करे या कोई उस पर टच कर दे या हाथ जाए और वो शोर मचा दे और रोने लगे, तो बहुत लड़के खड़े हो जाते हैं। अगर एक खूबसूरत लड़की ये कहे कि मुझे लोग स्टॉक कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बिलीवेबल है। 2 खूबसूरत लड़कियां अगर ये कहें कि मुझे स्टॉक कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बिलीवेबल है। 3 खूबसूरत लड़कियां अगर ये बात कहें कि मुझे स्टॉक कर रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल है, टोटली बिलीवेबल है। हर आदमी इंटरेस्टेड होगा इस स्टोरी में, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना कि ये चीज़ें हो रही हैं। आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको कैटेगराइज, आप उसको ईसीडी बना के रखेंगे कि आप लूज़ ना करें इसे, आप रखेंगे उसको अपने पास कि इस तरह से कभी हो सकता है इस वक्त कुछ ना कर सकें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे? कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। चेस का गेम चल रहा है, एक चाल उन्होंने गलत चली, एक चाल आपने गलत चली, उन्होंने कैपिटलाइज करा, एक चाल वो गलत चले, आप कैपिटलाइज कर लो, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है? ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि बी फियरलेस इन दीज सिचुएशंस, बट आदमी को डर लगता ही लगता है। भाई एक बच्ची है, एक लड़की है, वो जिसके पास इनोसेंट बच्ची है, जिसने कभी पुलिस को नहीं देखा, कभी थाना नहीं देखा, कभी मिलिट्री मतलब वो नहीं देखा, क्या कहते हैं, कभी अदालत में नहीं जाना हुआ कभी उसका, कभी किसी टेढ़े लोगों से पारा नहीं रहा उसका, ठीक है? मैं एक 42 साल का आदमी हूँ जिसकी 12 साल की ज़िंदगी और तकरीबन सारी ज़िंदगी सूअर के बच्चों से जो है डील करने में निकली है। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि बी फियरलेस, बी हार्डन्ड, राइट? इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ गर्ल और फॉर अ यंग बॉय टू फेस दिस सिचुएशन। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कि भाई आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहा है। सामने वाला अगर असॉल्ट चाह रहा है तो वो आपको चूज़ करेगा किसी टपोरी को, किसी उल्लू के पट्टे को, लो लाइफ को, जो आपको कभी रात में स्टॉक करे या कभी दिन में। अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं एक साइकोपैथ हूँ और मैं
अब मुझे आपको परेशान करना, मुझे डराना होगा आपको, तो मैं अपनी मिलिट्री को कहूँगा भैया 20 आदमी AK-47 के साथ वहाँ खड़े कर दो, ठीक है। अब क्या मैं वो AK-47 वालों को आपके साथ कुछ करने के लिए कह सकता हूँ? क्या वो रियल थ्रेट है कि नहीं है? नहीं है ना भाई। अब मैं पागल थोड़ी हूँ कि वो मैं कहूँगा कि जो वो काम करो जो मेरे साथ मुझे ट्रेस किया जा सके, बाद में मुझे एग्जैक्टली मुझ तक ट्रेस किया जा सके। मैं वो काम थोड़ी करूँगा कि मैं मतलब कि मरना है मुझे क्या ये काम करके। तो ये चीज़ वहाँ थ्रेट नहीं है। अब नॉर्मल लोग, आप वैसे तो डरेगा हर आदमी, ठीक है। हमारे पीछे अगर 4 लोग आएंगे AK-47 लेंगे या 4 लोग होंगे तो हम डरेंगे, हम शायद नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कोई थ्रेट नहीं है। अगर आपको फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी तो कोई लीगल प्रेसिडेंस होना चाहिए उसके लिए, कोई तरीका होना चाहिए उसको करने के लिए, कोई उसको वो कोई लूप होल होना चाहिए जो हम एक्सप्लॉइट करेंगे। और अगर कोई लूप होल एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, जो कंटिन्यूसली एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लूप होल है, इसका मतलब ये है कि वो यूज़ नहीं हो सकता। अगर कभी लूप होल यूज़ करना होता है किसी के अगेंस्ट, तो कभी उसको एडवांस वार्निंग नहीं दी जाती है कि हाँ ऐसा है और ये हो जाएगा, हाँ ऐसा है और ये हो जाएगा, एकदम से किया जाता है, ठीक है। कभी भी एडवांस वार्निंग, अगर एडवांस वार्निंग दी जा रही है, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो लूप होल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पहला काम आप ये करेंगे कि उसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। आज मेरी एक और बच्ची से भी बात हुई थी और उसने कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे बताई हैं, तो मैंने उससे कहा कि पहली चीज़ आप ये कहेंगे कि आप ये रिकॉर्ड करेंगे। आप उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे। 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप निकल जाओ ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर निकलना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, वो कनेक्शंस नहीं बचे हैं, तो आपको इसको फेस करना पड़ेगा। और फेस आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि आप इससे नहीं फेस करेंगे, आप इससे फेस करेंगे। दिमाग से कहीं देखिए, हर चीज़ काम आती है। कभी कहीं पर जो है ब्रेवरी काम आती है, कहीं पर सामने वाले को ठोकना काम आता है, कहीं सामने वाले से जो है दबना काम आता है, कहीं विक्टिम बनना भी काम आता है, ठीक है। अब आप यही इमेजिन करिए कि अगर आप डर रहे हो उससे और आपसे कोई एक बिज़ी स्टेशन पे कोई कुछ बदतमीज़ी कर दे और आप रो दें और चिल्ला दें, तो तमाशा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो वहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन और जब भी हम लोग देखिए ज़िंदगी में, जब भी हम लोग अंदर आते हैं, हम तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं कि आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कैसे आएंगे। हमें बहुत क्लियरली पता होता है कि ये टाइमलाइंस आ रही हैं, ये चीज़ें थ्रेट्स हैं वहाँ पर, और हम फिर भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इस लेवल 10, हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक्सट्रीम केस फेस कर रही हैं जहाँ आपका साइकोपैथिक स्टॉकर एक राजा है मेरी तरह, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि आप आम आदमी नहीं हैं, आप बहुत ख़ास आदमी हैं। कोई आम आदमी के साथ इतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो उनको आपसे मतलब इट इज़ मेकिंग यू अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एंड दे आर डेडिकेटिंग एज मेनी रिसोर्सेज एज दे कैन टू फॉर यू। अब आप यही देखिए कि डर के मारे अगर डिसीजन लिया जाए तो गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर आप क्रिटिकल डिसीजन गलत ले लोगे तो भाई नुकसान तो होगा, ठीक है। चेस के गेम में अगर आप विनिंग मूव ओवरलुक करके कोई और घटिया मूव कर दोगे तो सामने वाला कैपिटलाइज तो करेगा, आपके मोहरे भी पिटेंगे और आपको भी परेशानी होने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेम ख़त्म हो गया और गेम आखिरी चाल तक चलता है, ठीक है। किसी भी वक्त वो गलत चाल चल सकती है और उसको आपको कैपिटलाइज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपका होमवर्क तैयार होना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे बच्चों से कहनी थी जो 20s में हैं, जो कॉलेज में हैं, जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो बच्चों से मुझे ये बात कहनी थी कि इसको इग्नोर नहीं किया जाता। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा काम जो होता है इसमें, वो आदमी शर्मिंदा होकर आइसोलेट होता है। ये कहता है भाई कि यार इसको किसी को बताना नहीं है और अंदर अंदर घूमता रहता है। ये उसकी उल्टी रेसिपी है ये, मतलब दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। सो नेवर डू डैट। अगर वो तो 100 बार 100 लोगों को बताओ, जो आपसे मिले उसको बताओ, जो उसको ना मिले उससे बताओ, और इसको रिकॉर्ड करो जिससे कि ये चीज़ जो है ये दिमाग में बैठ जाए लोगों की, यहाँ ये चीज़ है भाई। उल्टा काम करना चाहिए। जब आपके साथ परेशानी हो तो आप बिल्कुल बिग बैंग आउट ऑफ द ब्लू जाकर आप जो है लोगों से मिलें और लोगों से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करें। ये थ्योरी कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ उससे कॉन्टैक्ट करेंगे जो हमारा हमदर्द है और जो हमारे करीब है और जो हमारी बात सुनने को बिलीव करने को तैयार है, ये डैमेजिंग है।
ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली और ज़्यादातर लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ किसी आम आदमी के साथ हो सकती है। अब ये किसी को पता नहीं होता कि जो छोटा सा आइस ऊपर दिख रहा है उसके नीचे एक मैसिव आइसबर्ग है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये लोगों को पता नहीं होता। सिर्फ लोग जो हैं वो सुपरफिशियल वैल्यू पे चलते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, जो चाहे कर लेंगे। तो बी एश्योर्ड कि कर्मा इसको रियल, अगर उन लोगों को पता होता कि एक्चुअल मसला क्या है तो सपने में भी ये सब हरकतें नहीं करते वो लोग, चाहे कितने भी मक्कार और कितने हरामजादे ना हो, समझे। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी। और आप जो है मतलब देखिए, चाहे कितनी भी मुश्किल वो हो गेम हो, कभी भी जीता जा सकता है। और हम आपको ये बता दें कि आपकी पोजीशन जो है वो मुश्किल ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग तो है लेकिन डेंजरस नहीं है। उनकी पोजीशन जो है, जैसे अगर मैं एक साइकोपैथ हूँ और मेरी ये इस पोजीशन पर पहुँच गया हूँ मैं, मेरी पोजीशन कम से कम आपसे 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरी अगर मैं ईमानदारी से अगर मैं इस पोजीशन में होता तो मेरी फटी हुई होती। क्यों? वो इसलिए होती क्योंकि ये चीज़ जो है ये सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है ये। ठीक है, ये बिहेवियर जो है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। किसी वक्त भी ताश के पत्तों की तरह से गिर जाएगा, किसी वक्त भी ताश के पत्तों, एक बार गिरना शुरू हुआ और तो गिरता ही चला जाएगा, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे कितने भी हो। और ये गारंटीड है। ठीक है, इट इज़ अ गारंटी। आज की डेट लिख लो और ये लिख लो कि आज मैंने कहा है ये जिस दिन होगा उस दिन निकाल के पढ़ लेना वो पेपर कि मैंने क्या कहा था। ये चीज़ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, गारंटीड है ये। ठीक है, इट इज़ मेंशन इन एंशिएंट बुक्स, इट इज़ मेंशन इन ऑल साइकोलॉजी बुक्स दैट इट इज़ अनसस्टेनेबल। लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना अपने आप को और उसको इंटेलिजेंटली खेलना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कितने भी सर्कमस्टांसेस हों, कितने भी हार्डशिप हो, वो फेस आपको ही करनी पड़ेगी जब तक आपके राइट कांटेक्ट नहीं बन जाता। राइट लोगों से नहीं कांटेक्ट बन जाता तब तक आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेरे स्वीट बच्चे हैं, जो मेरे लविंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, तुम सब लोग, यू आर माई फैमिली, यू आर माई पीपल। ठीक है, जो हर शरीफ आदमी, हर मासूम आदमी, हर लविंग आदमी जो एक अच्छा इंसान है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। ठीक है, हर नीच आदमी, हर गलीज़ आदमी, हर मक्कार आदमी जो पैसे लेके कुछ भी करने को तैयार है वो हमारे दुश्मन है। हम ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जो हमारे एनर्जी से मैच करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतनी आसानी से करा जा सके ये, क्योंकि वो भी कोशिश करेंगे कि आपको सराउंड करें उन लोगों से जिनको वो यूज़ कर सकें। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने एक सिचुएशन फेस करी है और बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी, लेकिन क्रिटिकल टाइम पे सही डिसीजंस लिए। लेकिन ये काम हम कर रहे हैं 40 की एज में और आप हैं 20s में, राइट। तो हम मतलब ये यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी हमने, अगर आपने 10 गलत डिसीजन लिए तो हमने 10,000 गलत डिसीजन लिए हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें आदमी सीखता है एक्सपीरियंसेस से और गलतियाँ करने से, चोट खाने से। और वो हमने झेला है 12 साल 13 साल, काफ़ी लंबा अरसा, मतलब 12 से 13 साल का। हाई स्कूल के बाद ही हरामीपन शुरू हो गया था, हाई स्कूल के अराउंड ही हरामीपन शुरू हो गया था। तो आई एम हार्डन्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग बैटल पीरियड, राइट। तो हम इस सिचुएशन में अगर चाहे हम घिरे भी हों चारों तरफ से, आई एम काम। इतनी जल्दी मैं घबराता नहीं हूँ। जिसको मौत से डरना लगता हो उसको डराना बहुत मुश्किल होता है। अब आप यही जान लीजिए कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मैं वर्स्ट केस से नहीं कहता कि डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि जब अंदर आए हो और जब यहाँ पे हो तो वो अचानक से नहीं हो सकता। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और अगर लिखा होगा तो फिर वो होगा, उसको कौन सी बड़ी बात है, डरना कौन सा। आज कौन सा पहली बार है, इससे पहले भी कई बार होंगे, आए हैं हम, गए हैं हम लोग। आप आए होगे, आप गए होगे। जिस हो सकता है इससे बुरी सिचुएशन फेस करी हो आप, जो आप फेस कर रहे हो इससे बुरी सिचुएशन आपने फेस करी हो अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में। कि आम आदमी, एक आम सोल लेवल जो है ये सब चीज़ें फेस नहीं करता। ये चीज़ें रिजर्व्ड हैं लेवल 10 के आदमी के लिए। सो ऑन दैट नोट, ठीक है, डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ टू बी अलोन। ठीक है, कोई गलत डिसीजन नहीं होता, सब डिसीजन सही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ
मतलब कुछ टाइमलाइंस आसान मैनिफेस्ट हो जाती हैं अगर आप एक शॉर्टकट ले लो, कुछ टाइमलाइंस मुश्किल मैनिफेस्ट हो जाती हैं अगर आप एक गलत चाल चलते हो चेस के गेम में। तो इससे कोई दिल छोटा करने की बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं, और लेट्स प्ले द गेम लेट्स प्ले टू विन। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग, अगर आप डरोगे कि भाई आप मुश्किल गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो और आप वीडियो गेम डर के खेलोगे तो क्या आप खेल पाओगे, आप जीत पाओगे? जितना कम आप डरते हैं सिचुएशन में उतने ज़्यादा आपके चांसेस जीतने के ज़्यादा हो जाते हैं। जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरा होना चाहिए, बेइंतहा ख़तरा होना चाहिए, और दे आर आउट नंबर्ड। ऐसा लगता है ये है कि आई एम अ साइकोपैथ, मेरे पास सब सारे कंट्रोल हैं, वो लिखता है ये। यूजुअली अगर आप उस पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को, उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80 to 85% पॉपुलेशन इनके अगेंस्ट होती है। दे आर आउट नंबर्ड 100 to 1, 1000 to 1, ठीक है। इनके दुश्मन मिलिट्री में भी होंगे, इनके दुश्मन एयरफोर्स में भी होंगे, इनके दुश्मन हर महकमे में जो पावर सेक्टर है उनके दुश्मन होंगे उसमें, ठीक है। बस ये है कि ये इस्टेब्लिश करते हैं कंट्रोल जो है वो ब्रूचुअलिटी से, वो थ्रेट से, फियर टैक्टिक्स जो हैं इनका नंबर 1 जो है फेवरेट टूल होता है कंट्रोल का। लेकिन वो भी एक हद तक ही करा जा सकता है, एक हद के बाद कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो दी एंड हो जाता है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आई क्लोज दैट वीडियो एंड do not think that you are alone, do not think that do not let this determine who you really are, or I mean your bank balance decides what is happening to you, decides like what is your personality. Do not let that happen. Okay? You are different, you are something else, and you may be very 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 capable person if you are facing this. So, यू आर कंटिन्यू। और सर ये भी, आप कभी भी अकेले नहीं होते, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ फरिश्ते होते हैं, उनके साथ एंजल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली उनको गाइड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यही सोचो कि अगर ऐसा नहीं होता, आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो एक आदमी को, एक लड़की को गायब करने में कितना टाइम लगता है? एक बहुत पावरफुल आदमी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एक्सीडेंट भी हो सकता है, आदमी मिसिंग भी हो सकता है, 10 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।